ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں بہت سے جانور رہا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک رنگیلا نام کا ہرن بھی رہا کرتا تھا۔ وہ بہت ہی محنتی، ملنسار اور خوش مزاج تھا۔ وہ اپنے جنگل میں رہنے والے سبھی جانوروں کا خیال رکھتا تھا۔ اگر کوئی جانور بیمار ہو جاتا تو وہ اس کی تیمارداری بھی کیا کرتا تھا۔ وہ جہاں رہتا تھا وہاں اپنی محنت سے ہر طرف ہریالی پھیلائے رہتا تھا۔ ایک دن رنگیلا ہرن بیمار ہو گیا۔ اسے ایسا بخار ہوا کہ اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ اس نے علاج کے لیے کچھ جڑی بوٹیاں بھی کھائیں لیکن وہ ٹھیک نہ ہوا۔ اس کی بیماری کی خبر جنگل میں پھیل چکی تھی، لیکن اسے دیکھنے کے لیے کوئی نہیں آیا۔ اس کا دل ٹوٹ گیا، اس سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ پھر بھی وہ اٹھ کر کچھ آگے آیا۔ اس نے دیکھا کہ 2 ہرن اس کے علاقے میں آ گئے تھے۔ وہ بڑی بڑی ہری ہری گھاس کھا رہے تھے۔ انہوں نے جب رنگیلا کو دیکھا تو مسکرانے لگے۔ ارے رنگیلا، کیسی ہے تمہاری طبیعت؟ ہم تو تم سے ہی ملنے آئے ہیں، تمہارا حال چال جاننے آئے ہیں۔ ہاں رنگیلا، ہم نے سنا تمہاری طبیعت بہت خراب ہے، ہم سے رہا نہیں گیا، اس لیے چلے آئے ہیں۔ آپ بتاؤ کیسی طبیعت ہے؟ طبیعت میں کچھ خاص فرق نہیں آیا ہے، لگتا ہے کہ کوئی دوسری دوا لینی پڑے گی۔ ہاں، اچھی دوا لینا، تم آرام کرو، ہم چلتے ہیں۔ رنگیلا مڑ کر اپنے اڈے کی طرف چلا گیا اور ادھر دونوں ہرن رنگیلا کے علاقے کی ہری ہری گھاس کھانے لگے۔ دونوں آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ایک نے کہا، میں نے اس جگہ کے بارے میں جتنا سنا تھا اس سے بھی اچھا پایا۔ رنگیلا نے بڑی محنت سے گلشن سجایا ہے، چاروں طرف ہریالی ہی ہریالی ہے۔ دیکھ کر اور کھا کر طبیعت اچھی ہو گئی اور پیٹ بھر کر کھا لیتا ہوں۔ کل رنگیلا سے ملنے کے بہانے پھر آؤں گا۔ دوسرے نے کہا، مجھے رنگیلا کی طبیعت سے کیا لینا، یہ ہریالی کھینچ لائی ہے مجھے، میں بھی تمہارے ساتھ کل آؤں گا۔ دونوں ہرنوں کا جب پیٹ بھر گیا تو وہ وہاں سے چلے گئے۔ اپنے علاقے میں جا کر وہ رنگیلا کے علاقے کی تعریف کرنے لگے۔ ارے بھائی، جہاں سوکھی گھاس کھا رہے ہو، جاؤ ذرا رنگیلا کے علاقے میں، وہاں چاروں طرف ہریالی ہی ہریالی ہے، وہاں جاؤ، رنگیلا کا حال چال پوچھو اور پیٹ بھر کر ہری ہری گھاس کھاؤ۔ رنگیلا بہت ہی اچھا ہے اور بہت نیک ہے، اس کے بیمار ہونے پر بھی ہمیں ہری ہری گھاس کھانے کو مل رہی ہے، اس سے اچھی بات اور کیا ہو سکتی ہے۔ بہت ساری ہرنوں کی ٹولی بن گئی اور وہ سب رنگیلا کے پاس پہنچ گئے اس کا حال چال پوچھنے۔ پہلے تو رنگیلا کو بہت خوشی ہوئی کہ کتنے سارے جانور اس کا حال چال پوچھنے آ گئے ہیں۔ اس کے بعد کا نظارہ دیکھ کر اس کا سر ہی چکرا گیا۔ سارے ہرن اس کے علاقے کی گھاس میں جٹ گئے تھے، کچھ ہرن پھل بھی کھا رہے تھے، ان کے پاس سر اٹھا کر ادھر ادھر دیکھنے کی بھی فرصت نہیں تھی۔ رنگیلا بیچاری دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ یہ لوگ میرے پاس 2 گھڑی بھی نہیں رکے اور گھاس کھانے کے لیے جٹ گئے۔ اگر یہی حال رہا تو میرے علاقے کی ساری گھاس ختم ہو جائے گی، میرے کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں بچے گا۔ کچھ دیر کے بعد رنگیلا کا ایک دوست مونو بھالو بھی آ گیا۔ اسے آنے میں دیر ہو گئی تھی۔ وہ بولا، معاف کرنا دوست، تمہارے لیے دوائی کی تلاش میں گیا تھا اور اس لیے مجھے بہت دور جانا پڑا۔ دوائی تو مل گئی لیکن آنے میں دیر ہو گئی، اسے تم کھا لو اور جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ۔ رنگیلا نے جب یہ دوائی کھائی تو کچھ آرام ملنے لگا۔ تب تک اس کا دوست مونو اس کے ساتھ ہی رکا رہا۔ 2 دن کے بعد رنگیلا کی طبیعت ٹھیک ہو گئی، لیکن اس کے کھانے کے لیے نہ کوئی گھاس بچی تھی اور نہ کوئی پھل۔ اس کی ساری محنت پر پانی پھر گیا تھا، اداس ہو گیا۔ تب مونو بھالو بولا، میں جانتا ہوں کہ سب مطلب کے جانور ہیں، زیادہ تر لوگ دوستی کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اپنے فائدے کا سوچتے ہیں۔ تم فکر نہ کرو، ہم دونوں مل کر گلشن دوبارہ سجائیں گے اور نئی دنیا بنائیں گے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مطلب پرست دوست دشمن سے بھی زیادہ خطرناک ہوتے ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک جنگل میں 2 طوطے رہتے تھے اور وہ دونوں آپس میں بھائی تھے۔ مٹھو طوطا بڑا بھائی اور بنٹی طوطا چھوٹا بھائی تھا۔ بنٹی طوطے، آج مجھے پاپا کی بہت یاد آ رہی ہے، اب وہ اس دنیا میں نہیں رہے، لیکن ان کی آخری نشانی یہ امرود کا درخت ہے۔ بنٹی طوطا بولا، ہاں بھائی، ہمارے پاپا نے اس امرود کے درخت کو بڑی مشکل سے بڑا کیا تھا، اب ہم دونوں مل کر اس امرود کے درخت کو ہمیشہ ہرا بھرا ہی رکھیں گے۔ دونوں ہی بھائی اپنے امرود کے درخت سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے۔ بڑے بھائی کی شادی ہو چکی تھی اور اس کی بیوی بہت ہی زیادہ چالاک تھی۔ ایک دن اس کی بیوی بولی، طوطے جی،
मैं और आप तो कब से इंतजार कर रहे थे कि आपके पापा का आखिरी वक्त कब आएगा और कब हमें उस अमरूद के दरख्त से आधा हिस्सा मिलेगा। अरे हरियाली, आहिस्ता बोलो, अगर बंटी तोते ने सुन लिया तो गड़बड़ हो जाएगी। और वैसे भी इस अमरूद के दरख्त पर सिर्फ मेरा ही हक है क्योंकि मैं बड़ा हूँ। ये सुनकर उसकी बीवी बोली, अरे वाह तोते जी, क्या बात की है आपने। बस आप जरा अपने छोटे भाई से इस अमरूद के हिस्से की बात कर लें। बंटी तोते की दोस्त रानी चिड़िया होती है और रानी चिड़िया बहुत ही ज्यादा समझदार थी। एक दिन रानी चिड़िया ने कहा, बंटी भाई, तुम अपने बड़े भाई से जरा चालाक बनकर रहा करो, मुझे तुम्हारे बड़े भाई की नीयत कुछ अच्छी नहीं लगती। ये सुनकर बंटी तोता बोला, रानी चिड़िया, मेरा बड़ा भाई जैसा भी है मैं उसके बारे में कुछ गलत नहीं बोल सकता। बस यही वजह थी कि बंटी तोते का बड़ा भाई उसे बेवकूफ बना देता था। अगले दिन मिट्ठू तोता अपने छोटे भाई को अपने पास बुलाता है। देखो बंटी तोते, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ और अब पापा भी नहीं रहे, इसी वजह से अब सारे फैसले मैं खुद करूँगा। बंटी तोते, मैं चाहता हूँ कि पापा के इस अमरूद के दरख्त में से अपना अपना हिस्सा ले लें। तोते भाई, आप बड़े हैं, आप जो भी फैसला करेंगे मुझे कबूल होगा। बंटी तोते, इस अमरूद के दरख्त पर हर साल जितने भी अमरूद लगेंगे वो सब मेरे होंगे और इन अमरूदों पर तुम्हारा कोई हक नहीं होगा। इसी तरह इस दरख्त की लकड़ियाँ और इस दरख्त का साया तुम्हारा होगा। जब ये दरख्त बूढ़ा हो जाएगा तब ये अमरूद नहीं दे पाएगा, तब तुम इसे काट कर अपनी लकड़ियों का कारोबार शुरू कर लेना। बंटी तोता बहुत मासूम था, इसलिए वो अपने बड़े भाई की चाल को नहीं समझ सका। तोते भाई, मुझे कबूल है, अब से मैं इस दरख्त की छांव के नीचे ही बैठा करूंगा और कभी भी इस दरख्त के अमरूद नहीं खाऊंगा। मिट्ठू तोता बोला कि एक और बात याद रखना कि ये हमारी हिस्से वाली बात किसी और परिंदे को मत बताना। अगले दिन बंटी तोता अपनी भूख मिटाने के लिए अमरूद तोड़ने ही लगता है कि वहाँ उसका बड़ा भाई आ जाता है और गुस्से से कहता है, बंटी तोते, क्या तुम कल वाली बात भूल गए हो? मैंने कहा था ना कि अब ये इन अमरूदों पर तुम्हारा कोई हक नहीं है। पर तोते भाई, मैं क्या खाऊंगा? मुझे बहुत ज्यादा भूख लग रही है। मुझे क्या पता, जाओ तुम भी बाकी परिंदों की तरह मेहनत करके खाना खाओ। अपने बड़े भाई की बात सुनकर बंटी तोता बहुत उदास हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं। दिन ब दिन मिट्ठू तोता अपने अमरूद दूसरे जंगल में बेचकर बहुत ज्यादा अमीर हो गया था और अब उसके पास अपना घर भी था। एक दिन रानी चिड़िया ने बंटी तोते से कहा, मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ कि तुम जंगल में से खाना ढूंढ रहे हो, तुम्हें खाना ढूंढने की क्या जरूरत है? तुम्हारा तो अपना अमरूद का इतना बड़ा दरख्त है ना। ये सुनकर बंटी तोते ने कहा, रानी चिड़िया, तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाता। मेरे बड़े भाई ने मुझे ये बात बताने से मना किया था, लेकिन मैं अब तुम्हें बता रहा हूँ। रानी चिड़िया, मेरे भाई मिट्ठू ने अमरूद के दरख्त के हिस्से कर लिए हैं। भाई ने दरख्त का ऊपर वाला हिस्सा जहाँ अमरूद लगते हैं वो खुद ले लिया है और मेरे हिस्से में दरख्त का नीचे वाला हिस्सा आया है और जब वो दरख्त बूढ़ा हो जाएगा तो मैं उसकी लकड़ियाँ काट कर कारोबार करूँगा तो दरख्त का साया भी मेरा है। ये सुनकर रानी चिड़िया बोली, बंटी भाई, तुम कितने भोले हो और इसी भोलेपन का तुम्हारे भाई ने फायदा उठाया है। क्या मतलब रानी चिड़िया? मैं कुछ समझा नहीं। बंटी तोता बोला, अरे तोते भाई, इस दरख्त पर अमरूद ही काम के हैं जो तुम्हारे बड़े भाई ने खुद ले लिए हैं और तुम लकड़ी का कारोबार तो तब करोगे ना जब वो बूढ़ा होगा। दरख्तों की जिंदगी बहुत लंबी होती है, तुम्हारी पूरी उम्र गुजर जाएगी तब भी अमरूद का दरख्त बूढ़ा नहीं होगा और बस तुम्हारे बड़े भाई को ही इसका फायदा होता रहेगा। तुम्हारे बड़े भाई ने तुम्हें बेवकूफ बना दिया है, तुम्हारे हिस्से में तुम्हें कोई भी फायदा नहीं होगा। ये सारी बातें एक बहादुर कौवा सुन लेता है और फौरन ही बंटी तोता के पास जाता है। बंटी तोते, मुझे पता था तुम्हारा भाई चालाक है और वो तुम्हारे मासूम होने का जरूर फायदा उठाएगा, पर अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। तुम जाकर अपने भाई से अपना हिस्सा ले लो। रानी चिड़िया और बहादुर कौवे, अगर तुम मुझे इस बात का एहसास ना दिलाते तो जिंदगी भर इसी धोखे में रहता कि मैं भी एक दिन लकड़ियों का कारोबार करूंगा, पर अब और नहीं। मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि मेरा बड़ा भाई मेरे साथ इतना बड़ा धोखा करेगा, पर मैं अब अपने चालाक भाई से अपना हिस्सा लेकर ही रहूंगा। अगले दिन बंटी तोता अपने अमरूद के दरख्त के साए में आराम से बैठा हुआ था। कुछ देर बाद मिट्ठू तोता अपने अमरूद तोड़ने आता है। वो एक एक अमरूद तोड़कर नीचे जमीन पर फेंक रहा था। कुछ अमरूद तोड़ने के बाद जब मिट्ठू तोता अमरूद के साए के नीचे आता है तो बंटी तोता उसे कहता है, मिट्ठू भाई, आप यहाँ नहीं आ सकते, ये छांव वाला हिस्सा मेरा है और इस हिस्से पर
पर जो भी चीज गिरेगी याद रखो वो भी मेरी हो जाएगी, इसलिए आप यहाँ से चले जाइए। फिर मिट्ठू तोता गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन बंटी तोता एक उल्लू कारपेंटर को अमरूद के दरख्त के पास लेकर आता है। ये क्या, ये बंटी तोता उल्लू कारपेंटर को लेकर दरख्त के नीचे क्यों आया है? चलो मैं जाकर पूछता हूँ। फिर मिट्ठू तोता बंटी तोते के पास जाता है। बंटी तोते, ये तुम उल्लू कारपेंटर को यहाँ क्यों लाए हो? तोते भाई, इस दरख्त के नीचे लकड़ियों वाला हिस्सा मेरा है, इसलिए मैं इसकी लकड़ियाँ कटवा रहा हूँ ताकि लकड़ियों का काम शुरू कर सकूं। बंटी, तुम पागल हो गए हो? अगर तुमने इस दरख्त को काट लिया तो मुझे अमरूद कैसे मिलेंगे? मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। वाह भाई वाह, आपको अपने गरीब होने की फिक्र है मगर मेरी नहीं, इसलिए मुझे भी अब आपकी कोई फिक्र नहीं। तुम चाहते हो कि इस दरख्त के सारे अमरूद मैं ले लूं और मुझे एक बेकार सा हिस्सा दे दिया है जिससे मुझे कभी फायदा नहीं होगा। या तो आप मुझे इस दरख्त को काटने दें या फिर अमरूदों में से आधा हिस्सा दें। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो ठीक है, मैं इसे काट रहा हूँ और इसकी लकड़ियों से अपना कारोबार शुरू करूँगा। ये सारी बातें चल ही रही होती हैं कि वहाँ पर रानी चिड़िया भी आ जाती है। मिट्ठू तोते ने अपने सगे भाई को धोखा दिया है, तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए। उल्लू कारपेंटर, आप इस दरख्त को काट दें। नहीं नहीं, रुक जाओ और इस अमरूद के दरख्त को मत काटो, ये हमारे पापा की आखिरी निशानी है। मैं जानता हूँ कि मैंने अपने भाई को बेवकूफ बनाया है और आज सच में मैं बहुत ज्यादा शर्मिंदा हूँ। मैं अपनी बीवी हरियाली की बातों में आ गया था, मुझे माफ कर दो मेरे भाई। आज से इस दरख्त में हमारा बराबर का हिस्सा होगा, जितने अमरूद मैं लूंगा उतने अमरूद तुम भी लोगे। और तो और, मैंने इस दरख्त के अमरूद बेच बेच कर अपना बहुत बड़ा सा घर बना लिया है। बंटी तोते, आज से इस घर में तुम भी रहोगे। वो घर आधा तुम्हारा होगा और आधा मेरा, और फिर वो दोनों भाई खुशी खुशी एक साथ रहने लगते हैं। प्यारे बच्चों, इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है कि कभी भी किसी की मासूमियत का फायदा उठाकर उसे बेवकूफ नहीं बनाना चाहिए। घने जंगल में दो दरख्त साथ साथ थे। एक दरख्त हरा भरा और आमों से भरा हुआ था। दूसरा दरख्त बहुत कमजोर और उसकी शाखें भी सूखी हुई थीं। इस पर कोई फल नहीं था। हरा भरा आमों का दरख्त बहुत मगरूर दरख्त था। वो हर साल अपने पड़ोसी सूखे दरख्त का मजाक उड़ाता रहता। वो कहता कि एक दिन लकड़हारा आएगा और तुझे काट कर ले जाएगा। तेरी सूखी शाखों से वो आग जलाएगा, तू आग में जलकर मरेगा, आग में जलकर। हा 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 हा। अगर मेरा खात्मा ऐसे है तो तू कौन सा 100 साल जी पाएगा। एक दिन लकड़हारा तुझे भी काट कर ले जाएगा, मगर मैं यही चाहूंगा कि मैं भी जिंदा रहूं और तुम भी। चिड़िया और उसका बेटा लड्डू, कौवा और उसकी बीवी उड़ते हुए जा रहे थे। दूर से ही हरा भरा आमों का दरख्त परिंदों की आवाज सुन लेता है। आम का दरख्त बोला, परिंदे मेरे ऊपर ही आकर बैठेंगे और तेरी सूखी शाखों की तरफ कोई देखेगा भी नहीं। तू अकेला है और अकेला ही रहेगा। परिंदे भी वहाँ पहुँच जाते हैं। पिंकी कौवी फौरन बोलती है, बहुत लंबा सफर किया था, मैं तो थक गई हूँ। बहादुर जी, जरा मेरी टांगे तो दबा दो। कौवा बोला, तुम उड़कर आई हो तो मैं कौन सा जहाज में बैठकर आया हूँ, मैं भी तुम्हारी तरह ही थका हुआ हूँ। इनकी बातें सुनकर आम का दरख्त बोला, मेरे मीठे फल खाओ और मेरे ऊपर ही अपना घोंसला बनाओ, सारी थकावट उतर जाएगी। चिड़िया बोली, दरख्त जी, हम इसीलिए तो यहाँ आए हैं। पिंकी बोली, दरख्त मुझे कह रहा है, तुम्हें नहीं। सुन लो चिड़िया, अपना सामान उठाओ और थोड़ा आगे चली जाओ। ये दरख्त तो मुझे बहुत पसंद आ गया है, इस दरख्त पर हम अपना घोंसला बनाएंगे। चिड़िया बोली, पिंकी, ये दरख्त तो सबके साझे हैं। पिंकी ने कहा, माना सारे दरख्त साझे होते हैं, लेकिन ये दरख्त सिर्फ हमारा है। चिड़िया बोली, चलो हम इस सूखे दरख्त पर अपना घोंसला बना लेंगे। आम का दरख्त बोला, ना ना चिड़िया ना, ये दरख्त तुम्हें क्या देगा, ना साया ना फल, ये बहुत बेकार दरख्त है। सूखा दरख्त बोला, चिड़िया, ये दरख्त बहुत मगरूर है, मैं पानी ना मिलने की वजह से सूख गया हूँ, अगर तुम मुझे पानी दोगी तो मैं भी हरा भरा हो जाऊंगा। चिड़िया बोली, कौवा, तुम बनाओ इस दरख्त पर अपना घोंसला, मैं तो इस सूखे दरख्त पर ही अपना घोंसला बनाऊंगी। चलो लड्डू बेटे, अपना काम शुरू करते हैं। लड्डू और उसकी मम्मा सूखे दरख्त पर अपना घोंसला बनाने लगते हैं। कौवा और कौवी हरे भरे दरख्त पर अपना घोंसला बना लेते हैं। वो सब थके हुए थे, इसलिए आज रात सब जल्दी ही सो जाते हैं। आम का दरख्त बोला, ऐ सूखे दरख्त,
तेरी ये चिड़िया 2-3 नहीं टिक पाएगी यहाँ। जब भूख से मरेगी तो भाग जाएगी यहाँ से और तू हो जाएगा फिर से अकेला। सूखा दरख्त बोला, कौवों की दोस्ती कैसी है मैं जानता हूँ। मेरा ये हाल भी एक कौवे ने ही किया था। जब सुबह होती है तो लड्डू ने अपनी माँ चिड़िया से कहा, मम्मा मैं एक आम तोड़कर खा लूं? हाँ हाँ बेटे, आम तो ढेर सारे हैं, एक तुम खा लो और एक मेरे लिए भी ले आना। लड्डू जब आम तोड़ने लगता है तो आम का दरख्त जोर जोर से हिलने लगता है और कहता है, दूर हो जाओ मुझसे। कौवो उठो, तुम अभी तक सोए हुए हो। उठो, चिड़िया मेरे आम चोरी करने की कोशिश कर रही है। पिंकी बोली, चलो चलो अपने दरख्त पर जाओ, इधर क्या कर रहे हो? चिड़िया बोली, पिंकी बहन मैंने ही भेजा है लड्डू को आम तोड़ने के लिए। पिंकी बोली, तो तू क्या मेरे ऊपर अफसर लगी हुई है जो तूने ही भेजा है? भाग जाओ वरना एक लगाऊंगी। लड्डू वहाँ से चला जाता है। सूखा दरख्त बोला, चिड़िया मेरे लिए पानी लाओ, मैं बहुत देर से प्यासा हूँ। जब बारिश होगी तो पहले ही बारिश में मेरे पत्ते निकल आएंगे और फिर तुम इसके फल भी खाओगी। चिड़िया पानी लेने चली जाती है। वो अपने लिए और अपने बेटे के लिए दाना ढूंढती है और अपने दरख्त के लिए पानी लेकर आती है। चिड़िया दरख्त की जड़ में पानी डालती है। उसे देखकर पिंकी ने आम के दरख्त से कहा, मेरे मगरूर प्यारे दरख्त जी, तुम फिक्र ना करो, मैं भी तुम्हारे लिए लाल शरबत लेकर आऊंगी। शाम को आते हुए पिंकी कौवी और बहादुर कौवा जी भरकर आम खाते हैं और नदी पर जाकर सो जाते हैं। आज सूखा दरख्त बहुत खुश था क्योंकि उसे आज पानी मिल गया था। आम का दरख्त बोला, चिड़िया ऐ सूखे दरख्त को पानी पिलाओ या दूध, ये कभी हरा भरा नहीं होगा। चिड़िया बोली, इतना गरूर अच्छा नहीं होता, आप बहुत बुरे हो और कौवे भी तुम्हारे जैसे ही हैं। जिस दिन तुम्हारे फल खत्म हो जाएंगे फिर देखना वो तुम्हारे साथ क्या करते हैं। शाम हो जाती है। कौवा बोला, पिंकी उठो, दरख्त जी के लिए लाल शरबत भी तो लेकर जाना है। कौन सा लाल शरबत? वो तो मैंने सिर्फ उसे लालच दिया था ताकि वो अपने मीठे मीठे आम चिड़िया को न खाने दे। चलो चलते हैं। दरख्त दूर से ही कौवे को बिना पानी के आते हुए देख लेता है। उसने सोचा, ये कौवे तो सच में मेरे लिए कुछ नहीं लेकर आए, मगर मैं बहुत प्यासा हूँ। सॉरी सॉरी मेरे प्यारे दरख्त भाई, आज मुझे लाल शरबत नहीं मिला, कल लेकर आऊंगी तुम्हारे लिए। दरख्त बोला, तो तुम मेरे लिए फीका पानी ही ले आती। पिंकी बोली, ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारा दोस्त फीका पानी पिए, शरबत ही पिएगा हमारा दोस्त। दिन गुजरते गए। कौवा और कौवी आम खाते और सो जाते और कोई काम ही नहीं था उन्हें। आहिस्ता आहिस्ता इसी दरख्त पर आम कम होने लगे और प्यास के मारे इस दरख्त का बुरा हाल हो गया, मगर अपनी अकड़ की वजह से दूसरे दरख्त और चिड़िया से बात तक न करता था। सूखे दरख्त ने चिड़िया से कहा, मुझे हवा बता रही है कि 2 दिन में बारिश जरूर आएगी और बारिश के बाद मेरे पत्ते निकल आएंगे और मेरी नई शाखों पर फूल लगेंगे और फिर फल भी। मेरे फल जामुनी रंग के और बहुत ज्यादा मीठे होते हैं। लड्डू बोला, मम्मा बारिश के आने से पहले पहले क्यों ना हम अपना लकड़ियों का पक्का घर बना लें। मगर लकड़ियाँ कहाँ से आएंगी बेटा? दरख्त बोला, चिड़िया मेरी ये सूखी लकड़ियाँ मेरे किसी काम की नहीं, इन्हें काटने से मुझे कोई दर्द भी नहीं होगा। तुम ये लकड़ियाँ काट लो और अपने लिए पक्का घर बना लो। चिड़िया ऐसे ही करती है, अपने दरख्त से सूखी हुई लकड़ियाँ काटती है और अपना पक्का घर बनाना शुरू कर देती है। आम का दरख्त चिड़िया को देखकर कौवों से बोला, उठ जाओ, देखो चिड़िया अपने लिए पक्का घर बना रही है, तुम भी अपने लिए पक्का घर बना लो, बारिश होने वाली है। कौवा बोला, दरख्त जी मगर हमारे पास तो सूखी लकड़ियाँ ही नहीं हैं, हम जंगल से सूखी लकड़ियाँ लेकर आते हैं। चलो बहादुर जी। ये सुनकर दरख्त बोला, मेरा लाल शरबत ना भूल जाना, वो जरूर लेकर आना। कौवा और कौवी फिर नदी पर जाकर सो जाते हैं। वो शाम तक सोए ही रहते हैं। चिड़िया ने अपना पक्का लकड़ियों का घर बना लिया था। वो अपने घर में अपने बेटे के साथ बैठी हुई थी। शाम के बाद कौवे भी उठ जाते हैं। कौवी बोली, बहादुर जी अब इस दरख्त पर सिर्फ 2 आम ही तो बचे हैं, हम इन 2 आमों से सुबह नाश्ता करेंगे और फिर किसी और दूसरे दरख्त की तलाश में निकल जाएंगे। अब इस बार हम किसी अमरूद के दरख्त के साथ दोस्ती करेंगे, कोई ना कोई इस जैसा पागल दरख्त मिल ही जाएगा हमें। फिर दूसरे दिन कौवा और कौवी वो बचे हुए 2 आम भी खा लेते हैं। दरख्त बोला, आज मेरे आम खत्म हो गए और अभी तक तुमने मुझे लाल शरबत नहीं पिलाया। चल चल दरख्त जी, माफ करना, अगली बार जब तुम्हारे ऊपर दोबारा आम आएंगे
तब ही मिलेगा तुम्हें लाल शरबत। ऐसा कहते हुए कौवा और कौवी वहाँ से चले जाते हैं और वो दरख्त रोने लग जाता है। वो कौवे चले गए, मुझे प्यासा छोड़कर चले गए। सूखा दरख्त बोला, मेरे पड़ोसी, मेरे दोस्त, तुम अकेले नहीं हो, मैं और चिड़िया तुम्हारे साथ हैं। मगर वो बात याद करो जो मैंने तुम्हें कही थी कि कौवे कभी किसी के दोस्त नहीं होते। हाँ मेरे दोस्त, मैं भूल गया था और अपने आमों पर गरूर करने लगा था, मुझे माफ कर दो। फिर दोपहर के बाद आसमां पर बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। सभी परिंदे बहुत खुश थे क्योंकि बारिश उनके लिए नई जिंदगी लेकर आई थी। कुछ ही दिनों बाद चिड़िया का दरख्त भी हरा भरा हो जाता है और इस बार मीठे मीठे जामुन लग जाते हैं और बारिश की वजह से आम के दरख्त पर फिर से आम उगाते हैं। अब वो दोनों दरख्त, चिड़िया और लड्डू, बहुत खुश थे और खुशी से अपनी जिंदगी गुजारने लगते हैं। प्यारे दोस्तों, गुरूर का सर हमेशा नीचा होता है।